اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ابرار احمد ہے، میرا گاؤں دڑا ہے۔ تو اس دن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں گھر میں موجود تھا تو پولیس کے چند کانسٹیبل جو گئے میرے گھر میں، تو انہوں نے بغیر لاک کیے ہوئے میرے پہلے گیٹ کو، پھر میرے بیڈ روم تک پہنچ گئے۔ میں بیڈ روم میں موجود تھا تو انہوں نے وہاں سے مجھے میری فیملی بھی میرے ساتھ، میرے بچے بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ تو یہ مورخہ جو واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ 1 ستمبر 2020 کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں گئے اور میرے بچوں کو ہراساں کیا، مجھے ہراساں کیا اور میری وائف کو ایسے کیا، ہراساں کر کے انہوں نے کیا کہ وہاں سے مجھے اٹھا کے، ٹھیک ہے، بغیر کوئی ایف آئی آر بتائے ہوئے، بغیر کوئی درخواست بتائے ہوئے وہاں سے مجھے اٹھا کے تھانہ میں لے کے آئے گئے۔ تھانہ میں لانے سے پہلے ہی ایس ایچ او صاحب جو ہے نا، وہ موجود تھے، جو تفتیشی کا دفتر ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سول ڈریس میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بغیر مجھ سے کوئی سوال جواب کیے ہوئے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے مجھ پہ انہوں نے تشدد شروع کر دیا، مجھ پہ لاٹھیاں برسائی اور مجھ پہ لاٹھی بھی توڑی، ٹھیک ہے۔ تو اور جو بھی ان کے ساتھ ملازمین تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ بدسلوکی اور گالی گلوچ اور گندی زبان استعمال کرتے ہوئے مجھ کو اتنا تشدد کیا، بالخصوص جو ایس ایچ او صاحب ہیں کھریٹا والے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے کچھ معزز جو کچھ عہدوں پہ فائز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پوچھ کے ان کو بھی اتنی گندی نازیب گالیاں نکالی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ اختیار کیسے آیا، انہوں نے مجھے کیسے اٹھایا، میرا قصور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نہ میرے خلاف کوئی درخواست تھی، نہ میرے خلاف کوئی پرچہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ قانون کس نے دیا کہ ایک شریف انسان کو اس کے گھر سے اٹھا کے لانا، نہ اس کو بتانا، نہ کچھ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی معاملہ کرنا، آ کے سیدھے لا کے آن کے شروع گدھے کی طرح پریڈ کر دینا، یہ کہاں کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے حکام بالا سے، ٹھیک ہے، التماس ہے کہ وہ جو میرا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کریں، اس پہ نوٹس لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے انصاف چاہیے۔ آج میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کل کسی اور شریف انسان کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قانون کے رکھوالے نہیں ہے، میں ان کو یہ کہوں گا یہ قانون کے چور ہیں، یہ ان کو پوچھ ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قانون کیسے ہونا چاہیے، جس کی سزا ہو یا جس کا کوئی مسئلہ ہو اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ کون سا قانون ہے، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، یہ قانون ہے کوئی؟ تو میری حکام بالا سے پھر التماس ہے، ایس پی سے، ڈی ایس پی سے، آئی جی سے، ٹھیک ہے، ڈی آئی جی سے، جو بھی جتنے بھی اس میں ہوتے ہیں اس دوران، ان سے التماس ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو میرے بچوں کو خوف اور راس پھیلایا گیا میرے گھر میں جا کے، اسی طرح بغیر لاک کیے ہوئے، بغیر کوئی دستک دیے ہوئے میرے گھر میں گنڈوں کی طرح اندر چلے گئے، ایسے تو گنڈے بھی نہیں کرتے جس طرح ان کا رویہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہاں میں میڈیا سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی رہنمائی ہوتی ہے غریب کے لیے، پلیز ان کی آوازوں کو بلند کریں، ٹھیک ہے، ان کے حق میں آپ بھی لڑیں، یہ نہیں تو یہ قانون نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر جو شریف آدمی ہے نا اس کو بھی یہ ملزم بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا، اگر میرے پاس خدا کی قسم کوئی ریفل یا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا تو میں قانون کو اپنے ہینڈ میں لے لیتا، ٹھیک ہے۔ ان پہ بھی میں بھی پھر اپنا اس کا بدلہ، اس وقت میرے بھی جذبات ہو گئے تھے، پر انہوں نے مجھ پہ اتنا تشدد کیا، میں نے اپنی جو میرے جسم پہ وہ ذرت سے نشان آئے تھے ان کی لاٹھیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نے جا کے درخواست دی ایس پی صاحب کو، وہ تصویریں بھی بتائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی دیکھا، پھر ٹھیک ہے وہ مار کی سبھی کچھ۔ میں پھر ان سے التماس کرتا ہوں کہ جو میں نے درخواست دی ہے اس پہ صحیح، اس پہ نوٹس لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں تو ہم سٹرائک نکالیں گے، ہمارے پاس اور بھی آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد میں مجھ سے میں ایک یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں حکام بالا سے کہ میرا قصور نہ کچھ لکھائی نہ کوئی پڑھائی، ٹھیک ہے، مجھ میں انہوں نے حوالات میں تقریباً 6 گھنٹے بند رکھا، ٹھیک ہے،
6 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ना कोई पूछ ना पड़ताल ना कुछ सिग्नेचर कुछ नहीं कराया, उन्होंने मुझे फिर छोड़ दिया। ये कहाँ का कानून है? इस SHO से पूछें कि तू इंसान है, इंसान वालों का काम है, इंसान जो होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। उसको जो इंसान वाला होता है ना, जो अच्छे ख़ानदान का तल्लकदार होता है, अच्छे ख़ानदान से तल्लक रखने वाला होता है जो, ठीक है, उसके ये काम नहीं होते, ठीक है। मुझे तो ये महसूस होता है ये किसी अच्छे ख़ानदान से तल्लक नहीं रखता, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को बुलंद करें, मेरा साथ दें, ठीक है। ऐसे क्योंकि किसी और के साथ ऐसा वाक़या कभी पेश ना आए। वस्सलाम। ये बताएं कि आपके ऊपर क्या जुर्म था, मतलब मेरे ऊपर कोई जुर्म साबित ना। SHO साहब ने मुझे पूछा अंदर जाने के साथ तफ्तीशी जो हम बैठते हैं, जो बैठते हैं कार्रवाई लिखते हैं, आपको अभी तक नहीं पता कि आपने क्या किया? किया क्या मुझे इन्होंने बताया तक नहीं है कि क्या मसला क्या नहीं। जाते साथ मेरे पे परेड शुरू कर दी उन्होंने, डंडू के साथ औलाद में मुझे बंद कर दिया, ठीक है। तो बस ठीक है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मोअज़्ज़ज़ प्रेस क्लब के सदर जनाब अज़हर मलिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मौका दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। और उसके बाद सबसे पहले मैं मोहतरम अपने तायाज़ाद भाई इब्रार से इजाज़त चाहूँगा कि मैं इनका मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। इनसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं इनका मौक़िफ़ जो है वो काम बाला तक जो है वो पहुँचा सकूँ। इब्रार से मुझे इजाज़त है। और दूसरा ये कि मैं अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर कोई ऐसी बात मेरे मुँह से निकल जाए जो आपके साथ उन्होंने सलूक ना किया हो, तो आप वो यहाँ बता सकते हैं कि जी मेरे साथ ये वाक़या नहीं हुआ, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद है, मैं दड़ा से बिलोंग करता हूँ। राजा इब्रार साहब जो है वो मेरे तायाज़ाद भाई हैं, ठीक है। तो ये वाक़या एक इब्रार साहब का नहीं है, ये पूरे गांव दड़ा का, पूरे कबीले का, पूरे कुंबे का, पूरे खुरेटा का और पूरे डिस्ट्रिक्ट कोटली का, आई थिंक ये पूरी स्टेट एजे का मामला है। तो इस पे मैंने टाइम निकाल के आज यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ बात करने के लिए। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि किसी बंदे की तजलील ना हो। हम यहाँ किसी की तजलील करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ अपना हक लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले जनाब इज़्ज़त माब SHO सिकंदर आज़म साहब, सर से पहले मैं आपके नाम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर आपका नाम जो है वो एक ऐसा नाम है जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सिकंदर आज़म। सर काइंडली अगर आपको नहीं पता तो आप सिकंदर आज़म की बायोग्राफी चेक करें और सिकंदर आज़म नाम की जो है वो लाज रखें। यकीन करें कि ये वाक़या सुनने के बाद मुझे लगा है कि सिकंदर आज़म जो एक्चुअल सिकंदर आज़म था उसकी कब्र में रूह तड़पी होगी, और जो उसका उस्ताद अरस्तू था वो यकीन करें आज खून के आंसू रोया होगा। जो आपने रवैया थाना दूध में किया है उसकी वजह से जो आपके लोगों ने आपके भेजे हुए जो अजहर तफ्तीशी और दीगर पुलिस के अफसरान हैं जिन्होंने घर जाके औरतों की बेहरमती किया, मैं वाक़या सारा आपको सुनाता हूँ, सारे वाक़े के पॉइंट दिखाता हूँ और बताता हूँ कि पुलिस ने क्या क्या गलतियाँ की और पुलिस ने कैसे कैसे कानून को अपने हाथ में लिया। मैं एजे के स्टेट के हर उस फर्द को जो इज्जत रखता है और जो समझता है कि उसके घर में माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं, मैं उससे इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा हमारी बातों को गौर से सुना जाए। सबसे पहले हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद मोहतरम हमारे भाई मजलूम इब्रार इकबाल को इंसाफ मुहैया करना है। जो हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है कि हमारे भाई इब्रार इकबाल को इंसाफ दिया जाए। दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट जो है वो ये है कि जनाब इज़्ज़त माब SHO सिकंदर आज़म को एहसास इंसानियत, एहसास शर्मिंदगी दिलाना, उनको एहसास हो जाए कि उन्होंने ये गंदा काम किया है। तीसरे नंबर पे सज़ा या जज़ा का तयन फैसले की शफाफ इंक्वायरी के बाद होगा कि उनके लिए सज़ा की जाती है, जज़ा की जाती है। इसका तयन जो है वो हुकाम बाला ने करना है, जनाब DIG साहब ने, जनाब IG साहब ने, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब ने और जो है वो PM साहब ने। हमारा काम है यहाँ अपना मौक़िफ़ जो है वो अच्छे अल्फाज में पेश करना। और मकसद यह है कि ताकि आइंदा ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ऐसे मामलात से बचाया जाए। सबसे पहले मैं अब जो पुलिस ने जो वाक़यात किए, जिस तरह से पुलिस वालों ने कानून को अपने हाथ में लिया, मैं वो चीज़ें सब पे आया करना चाहता हूँ कि पुलिस ने कैसे कैसे आप कानून को अपने हाथ में लिया। सबसे पहले चादर चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया गया। देखें
कौन सा ला है, किस स्टेट का ला है, किस जंगल का कानून है कि आप किसी के घर में घुस जाएं और घर में घुस के आप घर में चार दीवारी क्रॉस ना करें, गेट ना क्रॉस करें, आप उसके फैमिली बेडरूम में घुस जाएं। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कानून अंधा होता है, लेकिन सर इतना भी अंधा नहीं होता कि किसी के बेडरूम में घुस जाए। खुदारा खौफ करें, डरें, अल्लाह से डरें, और उस वक्त से डरें जब लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी फैमिलियों को टार्चर करेंगे। देखें, दर्द महसूस वो कर सकता है कि जिसके घर में माएँ बहनें बेटियां होती हैं। जब किसी के घर में माएँ बहनें बेटियां होती हैं, इस्लाम ने हक दिया है चार दीवारी का औरत को, आप घर में दाखिल हो जाते हैं बगैर इजाज़त के। कौन सा कानून है, कौन से जंगल का कानून है? मेरी जनाब आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएसपी साहब से गुजारिश है, खुदारा ऐसे दरिंदा सिर्फ पुलिस अफसरान को, जितने भी हजरात हैं थाना के जिन्होंने ये काम किया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एजे के स्टेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके घर में माएँ बहनें बेटियां मौजूद ना हो। लिहाजा चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। औरतों के बुनियादी हकूक़ की हुर्मती हुई, ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ की बेहुरमती हुई। जिन औरतों को ख़वातीन को इस्लाम ने हक दिया, जिन औरतों को ख़वातीन को हक दिया, आज ये अफसरान जाके किस मुंह से हमारी औरतों को बुलाते हैं, किस मुंह से जाके उनसे सवाल करते हैं, किस मुंह से जाके वो उनसे तशवीश करते हैं? क्या इनके साथ कोई जो है वो लेडीज़ पुलिस थी? नहीं। ये किस तरह हमारे फैमिली बेडरूम में घुस गए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले 96 आवर से हम वेट कर रहे हैं, 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई बंदा अप्रोच करे, कोई हमें बंदा पूछे कि आप लोगों के साथ वाकया क्या हुआ है। बच्चों, और उसके बाद आता है जी बच्चों में खौफ व हिरास पैदा करना, बच्चों में खौफ व हिरास पैदा करना। जिन बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का फूल कहा, आप उन बच्चों के सामने जाके उसकी माँ की तजलील करते हैं, उसके बाप की तजलील करते हैं। किसने हक दिया है? सचो साहब, सिकंदर आजम नाम आपका हो गया है। वो सिकंदर आजम जो 33 साल की उम्र में मर गया, 33 साल की उम्र में बन गया, 20 साल की उम्र में बादशाह बना, उसने जो है वो मुल्कों के मुल्क फतह किए और दिल में ख्वाहिश लेके आया कि मैं पाक व हिंद को जो है वो फतह करूंगा। टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला होने के बाद मर जाता है, और आप सिकंदर आजम पैदा होते हैं जो आके हमारे बच्चों में खौफ व हिरास पैदा करते हैं, जो हमारे बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। आप हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें हैं, उनको जो है तबाह करने की कोशिश करते हैं। सिकंदर आजम साहब, मैं आपसे बड़े एहतरामन कहता हूँ कि हम ये आपको काम नहीं करने देंगे, हम ऐसा काम नहीं कर देंगे। हम ऐसी वैली में रहते हैं, वादी बना में रहते हैं, एजे के स्टेट की वो वादी है जहाँ के पुलिस अफसरान को रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आप जैसे लोग जो यहाँ थाना में आ जाते हैं, उनके लिए फिर मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसके बाद इंसानों के बुनियादी हकूक पे आ जाते हैं। इंसानों के बुनियादी हकूक की खुलेआम तजलील की मेरी तमाम इंसानी बुनियादी हकूक की तंजीमें जो हैं उनसे गुजारिश है, खुदारा ये बंदा नेक सिफ्त इंसान जो 5 वक्त का नमाजी है, जो एक नेक सिरत इंसान है, आप सोसाइटी से किसी से भी पूछ सके, अगर इसको घसीट के और थाने में जाके डंडू लाठियों के साथ जलील किया जाता है, मार कुटाई की जाती है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है वो खुलेआम जो है वो एक आदमी की थाना में जाके तजलील करें। उसके बाद आ जाते हैं पुलिस का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। अगर पुलिस को एजे के स्टेट ने इख्तियार दिया है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इब्रार के घर में जाएं, इब्रार को रिस्पेक्टेड तरीके से पैगाम भेजें, थाना में आके अच्छे तरीके से तशवीश करें। अगर आपको लिंक्स नज़र आते हैं तो आप उस पर कार्रवाई करें। ये कौन से जंगल का कानून है कि आप जो है वो किसी भी इंसान को उठा के इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आप जो है वो उस पर जुल्म डालना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ये हमें कानून में बताएं, कानून की शिकें दिखाएं, किस शिक में लिखा हुआ है कि आप अपनी जो है वो पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के बुनियादी एजेंडा नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, की खुलेआम तजलील की। आईजी साहब, आपके एजेंडे की खुलेआम एक SHO सिकंदर आजम खुलेआम तजलील करता है, खुलेआम तजलील कर रहा है। वो कह रहा है जी कि मुझे जो है वो नफरत इंसान से है, जुर्म से नहीं। खुदारा जो आपका
बेसिक एजेंडा है आज वो खत्म हो गया है। आईजी साहब, डीआईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपके एक एसएचओ ने आपके कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। यकीन करें धज्जियां उड़ा दी हैं। हम जो बातें यहाँ कर रहे हैं हम गवाह खान की मौजूदगी में करेंगे। हमारे पास मौके के गवाह मौजूद है, हमसे इंक्वायरी कराएं, ठीक है। हम वो नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बैकग्राउंड है। क्योंकि बैकग्राउंड दिखाने की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। कानून को तो अपने हाथ में लिया, निहायत गंदी गलीज बेहुदा नंगी गालियां दी, हत्ता के जो मजलूम इबरार है इसके खानदान के मुकद्दस ओहदाजात पे बैठे हुए आला अफसरान, हक दावे से कह सकता हूं मुकद्दस सीटों पे बैठे हुए आला ओहदेदारान को भी ना बख्शा, आला ओहदेदारान को भी ना बख्शा। निहायत गंदी गलीज गालियां दी, माँ बहन बेटियों में गालियां दी। खुदारा इस बंदे का साइकोसिस जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए। ये बंदा मेंटल तो नहीं है, इस बंदे का दिमागी टेस्ट होना चाहिए। ये बंदा कोई सस्ता नशा तो नहीं करता, चेक करे खुदारा जो ऊपर लोग बैठे हुए, क्योंकि लोगों की माओं बेटियों बहनों को कोई गंदी गालियां नहीं देता। जो गंदी गलीज गालियां बकते हैं उसके पीछे वजह होती है, या तो वो कोई सस्ता नशा करते हैं या उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है आउट होता है, इसलिए वो गंदी गलीज गालियां बकते हैं। मजलूम के आला ओहदेदारान सीटों पर बैठे हुए लोगों को गालियां बख्शने का मतलब यह है कि वो बंदा मेंटली हाजिर नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ, प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, सोसाइटी का एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे सामने आए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कौन होते हैं किसी के कुंबे को कमलाक कहने वाले? आपको किसने हक दिया है? आपको कौन सा कानून है जिसके तहत जो है वो आपने किसी कुंबे को कमलाक कहा, किसी कुंबे को गालियां दी और आला ओहदेदारान पे मुकद्दस लोगों को बैठे हुए गालियां दी? सर मेरी डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है, खुदारा इस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों को तरजीह